friends, good evening. Welcome to CA Final Indirect Tax by CA Meeta Mangal. How are you all? मैं भी लाइव आ जाऊँ एक बार. Old memories refresh. Yes, back to YouTube. But it's yet not live. Just give me a minute. It will get live. Yeah, now live. Hi, Mohammed. How are you all? So, question answer batch. I expect hi from everybody who are viewing me live, right? Hi, Ashok. I want all my 50 plus extra students, 60 students live. Hi, good evening, good evening. Meanwhile, students are joining. Let me tell you about this batch. This is Unstoppable batch where we're not going to stop, and it's not about that we keep on doing the questions till the date of exams. We'll keep on adding something or the other new. Hi, Bharat. Hi, Devangi ma'am. Hi, Abhishek. Hi, Asmita. Hi, Akash. Hi, Meenal. This is a new batch which is going to start from today. It's Unstoppable batch. In this, what are we going to cover? We are going to cover indirect tax question answers for December 2021 students, and what are we going to cover in this batch? We will be covering MTP mock test papers, RTPs, past exam question papers, and study material questions, which is almost is around 400 plus questions will be there. And it will not be like I'll be just doing the question. No, it's not like that. We will go in the depth of the question. We'll understand why is the question like this, or what could be the other type of question. We'll discuss that also. And the batch timing will be 7 p.m. to 8:30 p.m. in the evening. So now what are the benefits of the classes? Live classes on the spot, doubt clarification. You'll be getting backup of the classes and you'll be getting 2 views. Am I clear? Yes. So now the question comes, ma'am, what is the fees for this batch? It's 1,999 with hard copy. If you go for black and white copy, if you go for colored copy, it will become 2,400. And if you go without material, it is 1,750 rupees. Okay, so you can connect with us, or you can like call us or WhatsApp on these 3 numbers. It's 9022911770, or else 9422124885, or 9823019063. Hi, Mohit. So yes, do subscribe this channel, do like it, and do share it, and do share. Sharing is caring. Yes, Saroj. Hi, Saroj. Hi Mohit. Hi, Kamlendra. Dhari videos. Good morning. Good evening, Meeta ji. Good evening. Hi, Vaibhav, Saranya, Meenal. Just wait for 2-3 minutes. Let students join and then we'll start the batch, okay? And meanwhile, let me on the lights. Okay. So anybody interested in this batch? See, from today till Thursday, this batch will be there on YouTube, and from after that, from Friday onwards, we will be taking this batch on a different platform where only those students can view this batch who has paid or who has enrolled for this batch. Am I clear? Am I clear? Yes. So tell me, I've already told you people that it will be going in order. Have you people revised chapter 1 and chapter 2? Bolo. Sunday was not good. संडे वाली फीलिंग नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल अच्छा संडे नहीं गया आज. हाय अनूप. हाय मोहम्मद. हाय. आई डिडंट फेल्ट इट वाज अ संडे. इनफैक्ट ज़्यादा बिजी डे लगा मुझे संडे से. ओके. First, second, third. Yeah, you had test. आपने रिविजन करा ही होगा. Very good. Okay. So let's start. So almost 7:05. Let's start. Again, just to tell you people, this is a new batch which was starting from today. This is 10th of October
from evening 7 p.m. to 8:30 p.m. it will be there, and for 3-4 days this will be there on YouTube, and after that this batch will be on different platform where the one of enroll can see the classes. Am I clear? Yeah, you should revise. Okay, so let's start. Let's start with chapter 1. Okay, see at times what happened. Chapter 1 क्या है? Introduction to GST. तो as such chapter 1 if you say बहुत कुछ नहीं है, पर फिर भी अगर कभी पेपर डिफिकल्ट करना हो ना, तो ऐसा हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन नंबर 1, दिस वाज आस्क्ड इन CA फाइनल इन November 19, that state any 5 matters on which GST Council may make recommendation under Article 279A of the Constitution of India. Yes, अब मैं क्लियर? क्या क्वेश्चन है? कौन से 5 मैटर्स हैं where GST Council will have to make recommendations. तो सिंपल एक चीज समझ के रखना, कोई भी चेंजेस GST में आ नहीं सकते जब तक GST Council उसके लिए अपना recommendation नहीं देगा. Getting my point? तो keep that in mind. Keep that in mind. I hope you are getting my point. Keep that in mind. So let's understand first thing. Goods and services that may be subjected to tax or exempted from tax. किस पर टैक्स लगेगा, कौन सा एग्जाम्प्ट होगा, आपको किससे पूछना पड़ेगा? जीएसटी काउंसिल से पूछना पड़ेगा. एग्जाम्पशन का लेट्स रिवाइज. टेल मी एग्जाम्पशन का सेक्शन क्या है? सेक्शन क्या है एग्जाम्पशन का? Fast, I want this type of preparation. मतलब it's not only chapter 1. You'll have to link other chapters when you're doing any chapter because tax पूरा interlink है. फटाफट बताओ मुझे एग्जाम्पशन का सेक्शन क्या है? Tell me, I'm waiting for you all to reply. Exemption का सेक्शन बताओ मुझे. Yes, मोहम्मद. बट अगर सिर्फ सेक्शन 11 बोलोगे ना तो मैं मार्क्स नहीं दूंगी. सेक्शन 11 ऑफ CGST Act 2017. Tell me, एंड अगर मुझे यही IGST एक्ट की बात करनी हो, यही अगर मुझे IGST एक्ट की बात करनी हो, तो IGST एक्ट में कौन सा सेक्शन है? IGST एक्ट में कौन सा सेक्शन है? फास्ट. इतना टाइम नहीं लेना. आई नो यूट्यूब पे कमेंट स्लो आते हैं. गॉट इट. वो आदत चली गई ना, MS टीम पे हम लोग आ गए, लाइव एकदम रियल टाइम बेसिस पर रिप्लाई मिल जाता है. बट नाउ आंसर टू माई क्वेश्चन. व्हेन आई टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पशन इन IGST कौन सा सेक्शन होता है? इतना टाइम नहीं लेना यार. IGST की बात कर रही हूँ वैभव. सेक्शन 11 इज ऑफ CGST एक्ट. व्हाट अबाउट IGST? सेक्शन 5 अनूप 5 होता है. रिप्लाई. Wrong. It's not section 5. Section 5 तो लिवाई की बात करता है. सेक्शन 6. तुम लोग सारे ही सेक्शन 5 क्यों बोल रहे हो? सारे ही सेक्शन 5 क्यों बोल रहे हो? सेक्शन 5 इज फॉर लिवाई. इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो IGST लगेगा, ऐसा सेक्शन 5 बोलता है. सेक्शन 6 क्या बोलता है? It is section 6, not section 5. Section 6 of IGST Act talks about exemption. फटाफट मुझे एक और चीज बताओ. तो करो आप याद, इसलिए तो याद करवा रही हूँ. नेक्स्ट मुझे नोटिफिकेशन नंबर बताओ. CGST के लिए नोटिफिकेशन नंबर क्या है? एग्जाम्पशन का CGST का नोटिफिकेशन नंबर क्या है? CGST का एग्जाम्पशन का नोटिफिकेशन नंबर क्या है? फास्ट. इतना टाइम नहीं लगाना है. नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 -CTR. Am I clear? और IGST का नोटिफिकेशन नंबर क्या है? 9/2017 IT. Okay, this is the way
रिविजन होना चाहिए। तो एक पॉइंट पढ़ के हमने सेक्शन रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट, मॉडल जीएसटी लॉ या प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्शनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई हमने पढ़ के रखा है। इंटर स्टेट सप्लाई में पैसा किसके पास जाता है, आईजीएसटी लगता है, पैसा किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, एक पोर्शन अपने पास रख लेता है और एक पोर्शन उस स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है जहां पे गुड्स कंज्यूम हुआ है। एम आई क्लियर? देन प्लेस सप्लाई के बारे में भी कौन बताता है, हमें जीएसटी काउंसिल बताता है। फटाफट सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 ऑफ IGST, 10, 11, 12, 13 of IGST deals with place or supply provision. फिर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर एग्जम्पशन, आपके ऊपर 10 लाख लगेगा कि 20 लाख लगेगा कि 40 लाख लगेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एग्जम्पशन की भी कौन बात करेगा, जीएसटी काउंसिल बात करता है। रेट क्या होगा, जीएसटी काउंसिल बताता है। स्पेशल रेट क्या होगा, जीएसटी काउंसिल बताता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हमारे नॉर्मली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, बट कंपोजिशन स्कीम वाले चैप्टर में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। ये सब कौन बताएगा, जीएसटी काउंसिल बताता है। मैं क्लियर? और किस दिन से एचपी मैन, व्हाट इज एचपी मैन, मुझे बताओ, व्हाट इज एचपी मैन? रिप्लाई HP man. Hi Arun. Pushpendra, this PDF will not be available. This is basically a paid batch. So the one who have enrolled for this batch will be getting the hard copy for this batch. Am I clear? बाद में हाय हेलो करना, मुझसे बात करो। HP man is petrol. HP man क्या है, petroleum products. Getting my point? High speed diesel, motor spread commonly known as petrol, aviation turbine fuel, natural gas and petroleum crude, इनके ऊपर जीएसटी कब एप्लीकेबल होगा ये कौन बताएगा, जीएसटी काउंसिल बताएगा। एनी अदर मैटर्स रिलेटेड टू जीएसटी आपको जीएसटी काउंसिल से पूछना पड़ेगा। हमने बहुत सारी चीज़ें बताई है। हमें एग्जाम में एनी 5 लिखना है। एम आई क्लियर? हमें एग्जाम में एनी 5 लिखना है। क्लियर? यस। नेक्स्ट, Question 2 can be important from exam point of view. Question 2 can be important from exam point of view. तो Question 2 समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, अपन पूरा फ्लो चार्ट समझ लेते हैं सो दैट अपने को बार बार Question 2 में डिफिकल्टी नहीं आने की। करेक्ट वैभव, करेक्ट। डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम क्रूड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जीएसटी कहां लगता है, जीएसटी कहां नहीं लगता है। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नो जीएसटी। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, state excise duty and VAT or CST as the case may be, VAT or CST as the case may be. Am I clear? Second, petroleum products, HP man, HP man पे भी नो जीएसटी, तो HP man पे भी क्या लगेगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी एंड वैट और CST एज द केस में लगेगा। थर्ड बात करते हैं, सी ये 6 अल्कोहल एंड एचपी मैन, अल्कोहल एंड एचपी मैन, ये 6 तो हमारे जीएसटी में है ही नहीं। अल्कोहल तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू अल्कोहल है, अल्कोहल को कैसे जीएसटी में लाने देंगे लोग, तो अल्कोहल को तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही मना कर दिया है। मैं क्लियर? एचपी मैन को कॉन्स्टिट्यूशन ने मना नहीं किया है, एचपी मैन को कॉन्स्टिट्यूशन ने मना नहीं किया है, बट हमारे चार्जिंग सेक्शन ने मना किया है। देन नेक्स्ट थर्ड इज टोबैको, टोबैको पे जीएसटी लगेगा बट साथ साथ एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी। देन नारकोटिक्स
या ओपियम, वेट, ओपियम, इंडियन हैम्प, नार्कोटिक्स एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स के ऊपर, इसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, इसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी लगेगा, एंड अदर्स के ऊपर ओनली जीएसटी. कॉपी करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर 1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर 1. कॉपी करो फटाफट. Am I clear? Yes. टोबैको के ऊपर, ओपियम के ऊपर कैस्केडिंग इफेक्ट रहेगा, बिकॉज हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऐड करने के बाद उस पर जीएसटी लगाएंगे. Done and dusted. Great. So now let's see the question. Now you only answer. Discuss the liability of GST or otherwise on the following. स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये. मैंने आपको सोर्सेस भी देख के रखे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया है. Am I clear? Alcohol, liquor for human consumption. Alcohol पे क्या लगेगा? State excise duty and VAT और CST, right? State excise duty and VAT और CST. तो यहाँ पे देखो, it is what? Outside the GST purview. Manufacturing पे क्या लगेगा? State excise duty लगेगा and CST या VAT लगेगा. Am I clear? Petroleum, crude, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस पे क्या लगेगा? ये भी अभी जीएसटी पर्व्यू में नहीं है, तो इस पे क्या लगेगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी. क्या लगेगी? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी एंड वैट या सीएसटी एज द केस में भी लगेगा. एम आई क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड की बात कर, टोबैको में क्या होने वाला है? टोबैको पे जीएसटी है, पर टोबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगने वाली है. कौन सी एक्साइज ड्यूटी लगेगी? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी. गेट पॉइंट? by union, central excise duty as well as GST. Am I clear? And opium, Indian hemp, other narcotic drugs के ऊपर क्या होने वाला है? GST as well as state excise duty. Am I very clear? और अगर मैं एक ऐड कर दूं others ऐड कर दे, only GST. Am I clear? Is this clear? Please tell me. Is chapter 1 clear? Chapter 1 में दो ही questions थे. Tell me, is chapter 1 clear? Any issue in chapter 1 till now? Please tell me. Anyway, you people want me to revise something? Tell me fast. Tell me fast. Anywhere, any issue? Yes. एग्जैक्टली ओपी. ये टेबल बना लो. ये टेबल से आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया. ओपियम, इंडियन हैम्प, नार्कोटिक्स एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स. क्लियर? चरस, गांजा, अफीम की बात चल रही है. एम आई क्लियर? कैन आई गो अहेड विद नेक्स्ट चैप्टर 2? 15 मिनट में लगे. 7:05 को तो स्टार्ट किया था हमने. हाँ ठीक है, 15 मिनट बोले. 15 मिनट में वी आर डन विद चैप्टर 1. कैन आई गो अहेड? फास्ट, जल्दी बोलो मुझे. बहुत टाइम लैग हो रहा है यार. नो कनेक्शन. ओके, व्हाई नो कनेक्शन? back online. Yeah, okay, now I'm back online. Go ahead. Okay, let's go ahead. So let's go to next question. Next chapter. Let's go to next chapter. Chapter 2. One of the most important chapter from exam point of view. See, क्या हो जाता है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हर क्वेश्चन में ऐड हो सकते हैं. उसमें चैप्टर 2 सप्लाई इज वन ऑफ द चैप्टर जो इंडिविजुअली जितना आने के चांसेस कम है, उससे ज़्यादा आने के चांसेस कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस में. Am I clear? कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस में
इट्स लाइक मोर चांसेस, बिकॉज क्या हो जाएगा, हमें एंड में क्या बोला जाएगा जब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा कि टैक्सेबल वैल्यू निकालो और कितना टैक्स पे करना है वो निकालो, राइट। तो सप्लाई पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये सप्लाई है या नहीं है, जो ट्रांजैक्शन दिया वो सप्लाई है या नहीं है। सप्लाई नहीं है तो बात खत्म हो जाती है, और अगर सप्लाई है तो विद कंसिडरेशन है या विदाउट कंसिडरेशन है। तो विद कंसिडरेशन है तो हम सेक्शन 15 पे जाएंगे, विदाउट कंसिडरेशन है तो वैल्यूएशन रूल्स पे जाएंगे। तो जब हमारा वैल्यूएशन चैप्टर आता है या हमारा जो आईटीसी चैप्टर आता है तो उस चैप्टर में यस हमारा मेजर फोकस ऑन सप्लाई रहता है। और हाँ, सप्लाई चैप्टर में हम कितने सेक्शन पढ़ने वाले, 9 नहीं पढ़ने वाले, यहाँ पे से 2 ही सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। सेक्शन 7 डिफाइंस द टर्म सप्लाई, section 7 defines the term supply, section 8 defines the term composite and mixed supply। इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, schedule 1, schedule 2, schedule 3। getting my point? am I clear? till here? तो let's go ahead। अब समझो, there are 2 type of questions। सप्लाई चैप्टर में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर सप्लाई चैप्टर पर से क्वेश्चन आएगा ना तो चांसेस कैसे वाले क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है किसमें, सप्लाई चैप्टर में इंडिविजुअली। तो दे कैन इवन आस्क दैट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इन एमसीक्यू। ओके, तो अब जब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में मैं कैसे पढ़ाऊंगी, अपन सोचेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेरे आंसर में क्या क्या होना चाहिए। एम आई क्लियर? तो नाउ दिस क्वेश्चन फॉर आरटीपी November 2019। Mr. Z, a supply, I'm starting with question number 1। Mr. Z, a supplier registered in Hyderabad, Telangana, procures goods from China and directly supplies the same to a customer in US. With reference to provision of GST law, examine whether the selectivity of goods by Mr. Z to customer in US is taxable under GST, and if yes, determine the place of supply for the same। आंसर करो क्या हुआ है, मिसेस जेड ने जो तेलंगाना से चाइना से गुड्स खरीद के यूएस में बेचे हैं, क्या ये सप्लाई है, और अगर सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ। टेल मी फास्ट। एग्जैक्टली ये क्या है, सी अनूप एक इसमें एक लाइन मिसिंग है, दिस इज वेयर मेरा रोल आता है। आपने क्या लिखा अनूप, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो बॉस ऐसे भी तो हो सकता है ना, मैंने गुड्स, अगर आप ऐसे बोलते हो यूएसए, मतलब चलो अगर मैं ऐसे बोलती हूँ, जस्ट सेकेंड, चाइना टू इंडिया एंड देन यूएसए, तो ये भी तो नॉन टैक्सेबल टू नॉन टैक्सेबल। आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, नॉन टैक्सेबल टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। अनूप, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। No, these are not high C transaction. Abhishek, you're wrong. This is not high C transaction. High C नहीं है ये. This is called as merchant trading transaction. Without entering into India. Am I clear? तो अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी है तो आपका क्रक्स मिसिंग हो गया है। Am I clear? नेक्स्ट, आपके आंसर में जब तक स्केड्यूल 3 नहीं लिखा है आपको नंबर मिलने वाले नहीं है, आपको स्केड्यूल 3 लिखना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एज मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। हाई सी ट्रांजैक्शन है नहीं है ये। हाई सी का मतलब होता है
कि मैं इम्पोर्टर थी, मैं इंपोर्ट करवा रही थी और गुड्स हाई सी में थे और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल मेरे नाम पे थे, मैं डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल किसी और के नाम पे एंडोर्स कर दिए, दैट इज कॉल्ड एज हाई सी सेल्स। उसमें गुड्स तो इंडिया ही आते हैं, पर जो मैंने हाई सी में बेचा है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये हाई सी ट्रांजैक्शन नहीं है, दिस इज मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये लिखना पड़ेगा कि स्केड्यूल 3 जो ये बोलता है, स्केड्यूल 3 में कुछ ट्रांजैक्शंस है जो बोलता है दे आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसमें एक पॉइंट देकर रखा है मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन विच सेज दैट सप्लाई ऑफ गुड्स, जो मैंने अंडरलाइन किया है, yes beyond 200 nautical miles, supply of goods from a place in a non-taxable territory to another place in a non-taxable territory without such goods entering into India is not supply। और जब सप्लाई ही नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई की बात आती नहीं है। तो बेसिकली ये प्लेस ऑफ सप्लाई का पॉइंट पूछ के आपको कंफ्यूज करने का इरादा था। गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर? इज क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। इज क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, exactly, goods have not entered India, it's from non-taxable territory to non-taxable territory। of course yes, of course yes बॉस, ये बाय डिफॉल्ट है। जब भी आप सेक्शन कोट करोगे स्केड्यूल 3 में, अगर आपने नहीं लिखा तो इट्स ओके, पर जब भी आप सेक्शन कोट करोगे आपको सेक्शन के साथ एक्ट लिखना ही पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? Second question, Diligent Force, a professional training institute, get its training material of aptitude question printed from Durga Printing House, a printing press. The content of the material is provided by the Diligent Force, who owns the usage rights of the same, while the physical inputs including paper used for printing belongs to Durga Printing House. Ascertain whether supply of printing material by Durga Printing House constitutes supply of goods or supply of services. No, not required, Saroj. Forget that. Not required. Not required. And the question क्या है? क्वेश्चन क्या है? डिलीजेंट फोर्स एक प्रिंटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुर्गा प्रिंटिंग हाउस को कंटेंट दिया कि ये प्रिंट करके दो। तो जो दुर्गा प्रिंटिंग हाउस है, दुर्गा प्रिंटिंग हाउस, दुर्गा प्रिंटिंग हाउस ने क्या किया, पेपर उनका था और पेपर पे क्या करके दिया, प्रिंटिंग करके दी। हमें क्लियर? तो दुर्गा प्रिंटिंग हाउस ने हमें दो चीज दी है, गुड्स दिए एज वेल सर्विसेज दिए। दुर्गा प्रिंटिंग हाउस ने हमें गुड्स दिए एंड सर्विसेज दिए। तो क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? टेल मी फास्ट। अकॉर्डिंग टू थॉमस इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अकॉर्डिंग टू मोहित अगेन इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बट इफ यू रिमेंबर, मैंने जब सप्लाई चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको ये सर्कुलर नंबर याद करने के लिए कहा था, क्योंकि ये सर्कुलर नंबर इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट नहीं है। 11/11/2017। एम आई क्लियर? जीएसटी, बस डेट वेट याद करने की जरूरत नहीं है, डेट वेट याद करने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? 11/11/2017। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? इस सर्कुलर में कहा गया है, इस सर्कुलर में कहा गया है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। क्यों अनूप, व्हाट हैपेंड टू यू? व्हाट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अनूप लॉस्ट लग रहा है आज। हमें क्लियर? Getting my point? I hope you are getting my point.
तो क्या है बेसिकली 11/11/2017 सर्कुलर ने बोला है कि अगर रिसिपेंट कंटेंट देता है और सप्लायर उसे पेपर के ऊपर प्रिंट करके देता है तो इसे कहा जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस, बेसिकली क्योंकि कंपोज सप्लाई है और कंपोज सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई इज प्रिंटिंग, तो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस. एम आई क्लियर? Am I clear? I hope you people are getting my point. मोहम्मद, I personally feel आप तो चाहते हो कि एग्जाम भी मैं ही दे के आ जाओ आपके बिहाफ पे. क्लियर? क्लियर? अब नाउ हाउ टू राइट द आंसर. आपको ये सर्कुलर नंबर देना पड़ेगा. ये सर्कुलर नंबर में क्या लिखा है? हैज क्लैरिफाइड दैट सप्लाई ऑफ बुक्स प्रिंटेड विद कंटेंट सप्लाइड बाय द रेसिपिएंट of such printed books is compulsory supply, and the question whether such supply constitutes supply of goods or service will be determined on the basis of what constitutes the principal supply. तो जो principal supply होगा वो predominant हो जाएगा, rest others are ancillary. In this case, printing of books where content is supplied by the publisher or the person owns a right to the intangible inputs, while the physical inputs, that is including paper used for printing, belong to the printer. Supply of printing is the principal supply, hence it will be constitute as supply of service. Am I clear? Mohit, not necessary 4 marks questions भी आते हैं. In fact हर question 14 marks का होता है. हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है. 14 मार्क्स का ब्रेकअप होता है. कोई क्वेश्चन 9 मार्क्स का एंड 5 मार्क्स का होता है, कोई 9 2 2 1 होता है. इट्स अप टू ICAI. टैक्स क्या होगा? जो प्रिंटिंग का रेट होगा वो पूरे ट्रांजैक्शन पे लग जाएगा. कंपोज सप्लाई में क्या होता है? जो प्रिंसिपल का रेट होता है वो पूरे पे लग जाता है. सपोज आपने 1 लाख रुपए पे किया, प्रिंटिंग पे अगर 18% का रेट है तो 1 लाख पे 18% जीएसटी लग जाएगा. क्लियर? क्लियर? इज सेकेंड क्वेश्चन क्लियर? लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन. लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन. क्या बात है थॉमस, झकास. Okay, third question. Agrawal Carriers is a GTA which is engaged in transportation of goods by road. अगर नहीं भी बोला होता तो भी GTA का मतलब भी by road होता है, तभी भी GTA का मतलब भी by road होता है. Agrawal Carriers is a GTA which is engaged in transportation of goods by road. As per the general business practice, Agrawal Carriers also provides intermediary and ancillary services like loading, unloading, packaging, unpackaging, transshipment, temporary warehousing in relation to transportation of goods by road. With reference to provision of GST law, analyze whether such services are to be treated as part of GTA service, being a composite supply or a separate supply. Answer karo. This is a really good question. This is really a good question. Reply करो fast. Whether it is a part of GTA मान के composite लेके जाओगे या separate supply लेके जाओगे. तो before coming to this, let me explain to you people. हमारे पास 3 टाइप के सप्लाई होते हैं. हमारे पास 3 टाइप के सप्लाई होते हैं. कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई एंड सेपरेट सप्लाई. समझना, कंपोजिट सप्लाई में ट्रीटमेंट कैसा होता है? जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है, जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है उसका रेट लगता है. मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट लगता है. Am I clear? एंड सेपरेट सप्लाई में individual supply with their respective rate, I hope you people are getting my point. I hope you people are getting my point. पहले कॉपी करो इसको.
फिर मैं समझाती हूँ क्या है. कॉपी करो. कॉपी किया. ये कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट पूरी ट्रांजैक्शन पे लगेगा. मिक्स सप्लाई में क्या होता है, हाईएस्ट रेट लगेगा. सेपरेट सप्लाई में क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई जो जो होगी उस पर अपना इंडिविजुअल रेट लगेगा. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? नाउ अगेन लेट्स कम टू अ क्वेश्चन. कम टू क्वेश्चन कि बेसिकली मुझे बताओ जीटी का काम क्या होता है. आंसर टू माई क्वेश्चन, जीटीए का काम क्या होता है. मुझे बताओ जीटीए का काम क्या होता है. फास्ट, व्हाट इज द जॉब ऑफ जीटीए. मुझे बताओ जीटीए का काम क्या होता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. तो मेजर सप्लाई जीटी, मेजर प्रिंसिपल सप्लाई जीटी का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. अब उसके साथ साथ वो एंसिलरी भी दे रहा है, इंटरमीडिएट भी दे रहा है, एज एन लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, ट्रांसशिपमेंट, टेम्पररी वेयरहाउसिंग एक्सेट्रा. Am I clear? Am I clear? तो now a question comes. Now a question comes कि ये जो ancillary services is given by GTA, will this be a part of GTA or will this be a separate supply? तो ये डिपेंड करता है GTA के नेचर पे. समझना, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, GTA के नेचर पे. समझना, यू ऑल नो व्हाट इज कंपोजिट, यू ऑल नो व्हाट इज मिक्स. अगर 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 क्या लिखा है, आई एम रीडिंग दिस आंसर. The various intermediary and ancillary services provided by GT are not provided as independent services. Understand करना, डायग्राम से समझाती हूँ. Ancillary, ancillary और क्या वर्ड आता है, एंसिलरी और क्या वर्ड आएगा जल्दी बताओ. इंटरमीडियरी, एंसिलरी और इंटरमीडियरी. एंसिलरी और इंटरमीडियरी सर्विसेज की बात हो रही है. अगर इस केस में अगर नॉट प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंटली, मतलब सपोज आप जीटी के पास गए, आप बोल रहे सर मुझे आपका ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस नहीं चाहिए क्योंकि मैं ना मेरी बिल्डिंग में से दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो रही हूँ, तो मुझे कोई गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पैकेजिंग, अनपैकेजिंग, लोडिंग, अनलोडिंग का चाहिए. तो जीटीए ने बोल दिया सॉरी मैम, हम अलग से नहीं देते हैं, हम साथ में ही देते हैं. मतलब अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लोगे तो ये मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. एम आई क्लियर? ऐसे केस में व्हेन अलग से प्रोवाइड नहीं किया गया तो इट इज पार्ट ऑफ GTA. इज अ पार्ट ऑफ GTA. इसको क्या कहा जाएगा, इसे कंपोजिट सप्लाई कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा, कंपोजिट सप्लाई कहा जाएगा. और कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल रेट, प्रिंसिपल रेट किसका है, GTA का है. प्रिंसिपल रेट किसका रहेगा, GTA पे रहेगा. प्रिंसिपल रेट GTA का रेट लगेगा. भले ही GTA has charged single price or separately, it does not matter. I hope you understood this. I hope you understood this. तो वही तो सिखा रही हूं मैं. I hope you're getting my point. इस केस में क्या होगा, आई होप यू नो दिस, कंपोजिट सप्लाई में कंसोलिडेटेड प्राइस होना ज़रूरी नहीं है. एक ही प्राइस चार्ज करो या अलग अलग चार्ज करो, इट डज नॉट मैटर. किसका रेट लगेगा, प्रिंसिपल रेट का, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा. गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट, इज दिस क्लियर. Is
दिस क्लियर? प्लीज टेल मी, क्या ये क्लियर हो गया? इस एंसिलरी अगर नॉट प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंटली तो क्या होगा? दूसरा, अगर करेक्ट, अगर इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड किया है, नहीं गौरव, सारी सर्विसेज हैं पर इसमें प्रिंसिपल सप्लाई किसका है? जीटीए का है। प्रिंसिपल सप्लाई किसका है? जीटीए का, तो जीटीए का रेट लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, अगर आप इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड से, मैं वापस रीड कर रही हूँ यहाँ से, द वेरियस इंटरमीडियरी, आई एम रीडिंग द लास्ट पैरा, द वेरियस इंटरमीडियरी and ancillary services provided by GTA are not provided as independent service but as ancillary to the principal service, namely transportation of goods by road. Are you? Invoice issued by GTA providing the said service includes the value of intermediary and ancillary services. In view of this, if any intermediary or ancillary services is provided in relation to transportation of goods by road, and charges, if any, for such services are included in the invoice issued by Agrawal carriers, such service would become a part of GTA service and thus will be composite supply and not a mixed supply, even though a single price is charged. It is not a mixed supply. अब सपोज आप इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड करते हो, इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड करते हो, सेपरेटली प्रोवाइड करते हो, इन दैट केस मतलब आप जीटी की सर्विस लो या ना लो, आपको लोडिंग करवाना है, अनलोडिंग करवाना है, पैकेजिंग करवाना है, अनपैक करवाना है, हम सब करके देंगे। अब मैं क्लियर? ऐसे केस में इफ सच इंसिडेंटल सर्विस आर प्रोवाइड एज सेपरेट सर्विस and are billed separately, whether in the same invoice or a separate invoice, मतलब सेम इनवॉइस में अलग लाइन आइटम है या सेपरेट इनवॉइस ऑल टुगेदर है, तो इसको क्या कहा जाएगा? सेपरेट सप्लाई कहा जाएगा, ना कि कंपोजिट सप्लाई कहा जाएगा, और ये मिक्स सप्लाई भी नहीं होगा। तो ऐसे केस में जिसका जो रेट है, फॉर एग्जांपल पैकेजिंग अनपैकेजिंग, लोडिंग अनलोडिंग, वेयरहाउसिंग और जीटीए, और क्या जीटीए 10%, 12%, 15%, 18%, तो जिसका जो रेट होगा वो रिस्पेक्टिव रेट लग जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? जिसका जो रेट होगा वो रिस्पेक्टिव रेट लग जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Is this clear or not clear? Please confirm. क्या ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ मुझे। हमेशा क्या क्या करो पता है? सी nobody expects from you people to write exactly what is given in the study material. कोई वो लैंग्वेज लिख नहीं सकता है, बट यस आपको थोड़ा अपना स्टैंडर्ड खुद रेस करना पड़ेगा, थोड़ा अपना स्टैंडर्ड खुद से रेस करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर? Next, fourth question. I just like this question very much. Mark this question an important question. ये हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे नहीं। आई डिडंट मिक्स सप्लाई, आई डिडंट मिक्स सप्लाई इन क्वेश्चन 2 चलेगा। हाँ, ज़रूरत ही नहीं थी, एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बेसिकली उन्होंने हमसे पूछा ही सरोज किया था, हमको पूछा ही क्या वो कंपोजिट है या सेपरेट है, मिक्स के बारे में पूछा ही नहीं। अननेसली मिक्स को लिख के कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर? मोहम्मद, मैंने से एग्जाम्पल दिया है, आई नो 5%, 12%। हे राम, मोहम्मद तेरा क्लास में, तो मैं भूल गई इसको, मुझे ठीक है बच्चे? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? वो तरह clear? Okay. Okay. Fourth question, a good question. Fourth question, a good question. पहले क्वेश्चन पूरा रीड करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। प्लीज अगेन मैं कह रही हूँ, डोंट सी द आंसर्स। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के कभी भी आंसर मत देखा करो, क्योंकि अगर हम आंसर देख लेंगे ना, हमको अपने आप सॉल्व आ जाएगा,
पर हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमने सॉल्व किया है कि हमने देख के सॉल्व किया है. क्लियर? ओके. Mr. Kajal, Mrs. Kajal, sorry, Mrs. Kajal, let's read the whole question once and then we'll go back. Okay? Mrs. Kajal, a registered supplier of Jaipur, Rajasthan. The first piece of information कि हमारी सप्लायर कहाँ की, राजस्थान की है. क्यों इम्पोर्टेंट है? इससे ये पता चलेगा ना कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि इंटर स्टेट सप्लाई है, येस और नो. इससे ये पता चलेगा कि क्या वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है या वो इंटर स्टेट सप्लाई है. गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर? फॉलोइंग सप्लाईज हैज मेड फॉलोइंग सप्लाईज द मंथ ऑफ जनवरी. तो कौन से मंथ का इंफॉर्मेशन दिया है? जनवरी मंथ का इंफॉर्मेशन दिया है. ओके. सप्लाई ऑफ लैपटॉप along with laptop bag to a customer of Mumbai for rupees 55,000 exclusive of GST. Laptop and laptop bag दिया है for 55,000 to a Mumbai customer without and this exclusive GST. Next, supply of 10,000 kit at rupees 50 each, amounting to rupees 5 lakhs, exclusive of GST, to Ram Fancy Store in Kota, Rajasthan, and each kit consists of one hair oil, one beauty soap, and one comb. ठीक है. Okay. Next, 100 kits are given as free gift to Jaipur customers on the occasion of Mrs. Kajal's birthday. Each kit consists of one hair oil and one beauty soap. Cost of each kit is rupees 35, but the open market value of such kits of goods and goods of like kind and quality is not available. Input tax credit has not been taken on the goods contained in the kit. ठीक है. Event management services provided FOC free of cost to a brother for son's marriage function in Indore, Madhya Pradesh. Cost providing is 80,000. Open market value of such service and like kind and quality is not available. Then 1400 chairs and 100 coolers hired out to Function Garden, Ajmer, Rajasthan for rupees 330 exclusive GST, but including cost of transporting the chairs and coolers from Mrs. Kajal's godown, Jaipur to Function Garden, Ajmer. एक मिनट अभिषेक, सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रही हूँ अभी. Mrs. Kajal has paid the cost of transportation of chairs and coolers to an unregistered GTA located in Rajasthan at the rate of 20 rupees for each chair and cooler, and in turn has charged rupees 20 only for each chair and each cooler from Function Garden. मतलब F point is linked to E point. ठीक है. G. Interest of rupees 6,400 inclusive GST was credited by Mrs. Kajal in January from Ram Fancy Store. मतलब राम मतलब कौन सा वाला? B. मैं कहेगा B. Get your point? Then इंटरेस्ट का पॉइंट आ गया. जीएसटी का रेट देख के रखा है सबका. लैपटॉप का, लैपटॉप बैग का, सी का, एस का, आई का, हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप, हेयर कॉम, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ चेयर एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. एम आई क्लियर? फ्रॉम द अबाव इंफॉर्मेशन compute the GST liability C, S or I as a case may be for Mrs. Kajal in the month of January. तो let's start solving. आंसर नहीं देखेंगे तो हमेशा पहली चीज what are we calculating? GST liability computation. How are you going to write? बॉस अगर आपने ये सब नहीं किया तो नंबर्स कट जाएंगे. Computation of GST liability of Mrs. Kajal for the month of January. Am I clear? Am I clear? ये आपके इसमें हमेशा होना चाहिए. नाउ आधी लाइफ आधा क्वेश्चन इजी हो जाएगा अगर आपने कॉलम सही बनाए हो तो पहला कॉलम सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम
पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम अमाउंट का, फोर्थ कॉलम CGST, SGST, IGST, एम आई क्लियर? और यहाँ पे आपको लिखना है अमाउंट इन rupees. I hope you people are getting my point. Correct? Yes. स्टार्ट करें. फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं. मिसेस काजल कहाँ से? राजस्थान से. फर्स्ट पॉइंट का आंसर देना. सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग अलोंग विथ लैपटॉप टू अ कस्टमर इन मुंबई फॉर ₹55,000. आंसर करो. मैंने लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग दो चीज़ दी है, मतलब मैंने दो गुड्स दिए. अब मैं क्लियर? पहली बात, इज इट अ कंपोजिट सप्लाई और इज इट अ मिक्स सप्लाई? फर्स्ट रिप्लाई टू माई क्वेश्चन, is it a composite supply or is it a mixed supply? Is it a composite supply or a mixed supply? Reply fast. Composite. लैपटॉप क्या सर पे लग के लेके जाऊंगी? लैपटॉप बैग देंगे हमें क्लियर. कंपोजिट में प्रिंसिपल रेट कौन सा है? प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है? कंपोजिट में प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है? एग्जैक्टली लैपटॉप का रेट लगेगा. और क्या ऐड करोगे? और क्या लिखोगे? देखो मैं आपको पॉइंटर्स दे रही हूं, आप क्या क्या लिखोगे? आप एग्जैक्टली सेक्शन 8 कोट करोगे. सिर्फ पहला आप लिखोगे ये कंपोजिट है एज पर सेक्शन 8. दूसरा ये इंटर स्टेट सप्लाई है. ये क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई. लोकेशन ऑफ सप्लाई राजस्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र. तो किसका रेट लगेगा? लैपटॉप का IGST का रेट लगेगा विच इज 18%. yes or no? So let's come to first one. Laptop refer note 1. What does that mean? आपने जो जो सोचा, सामने वाले को कुछ नहीं आता है ये मान के चलना. पेपर चेकर को कुछ भी आता नहीं है. 55,000 और 55,000 के ऊपर Am I clear? कोई confusion? Second point. Supply of 10,000 kit of ₹50 each amounting 5 lakhs exclusive GST to Ram Fancy Store in Kota. That means राजस्थान to राजस्थान हुआ है. मतलब ये क्या हुआ है? इंट्रा स्टेट सप्लाई. नहीं लिखना अनूप, कभी भी नहीं लिखना. आपका कॉलम, आपका जो टेबल होता है वो जितना आप क्लियर रखोगे उतना पेपर चेकर की लाइफ इजी रहेगी. मोहित इतना तो लिखना पड़ेगा. एज लोकेशन ऑफ सप्लायर इज राजस्थान, प्लेस सप्लाई इज मुंबई, हैंस इट इज इंटर स्टेट सप्लाई, हैंस IGST विल बी एप्लीकेबल. क्लियर? यस अस्मिता. नहीं, आप यहाँ कुछ नहीं लिखोगे पूरा. हाँ मतलब अच्छा वैसे ही बोल रहे हो या एटलीस्ट उतना तो लिखना पड़ेगा कि काजल ने लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग मुंबई में दिया, इतना लिखना पड़ेगा. नो नोट्स. ऑनेस्टली अगर आपका पूरा आंसर सही है 5 में से 2.5 मिलेंगे. ओके ये कौन सा सप्लाई है? मिक्स सप्लाई है. क्योंकि ऐसे हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप एंड कोम क्या हमेशा साथ में आते हैं? हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप एंड कोम क्या हमेशा साथ में आते हैं? नहीं. ये क्या सप्लाई है? मिक्स सप्लाई है. मिक्स सप्लाई में क्या होता है?
मिक्स सप्लाई में क्या होता है? मिक्स सप्लाई में क्या होता है, जल्दी बताओ। मिक्स सप्लाई में क्या होता है? हाईएस्ट रेट। हाईएस्ट रेट किसका देखना अपने को? हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप एंड हेयर कोम। हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप एंड हेयर कोम 28, मतलब 14% किसका सोप रेट लेंगे? ब्यूटी सोप का। किसका लेंगे? क्योंकि ये इंट्रा है, ये इंट्रा है। 14% एंड 14%, राइट? राइट, ओके। कुछ और आपको ऐड करना है क्या? बस अगर हमने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया था और हमको मालूम था कि हमारा जो जी पॉइंट है, हमारा जी पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है? वही वाले पॉइंट से रिलेटेड है कि नहीं है? तो चलो ओके, लेट्स नॉट मिक्स, लेट्स नॉट मिक्स, शांति रखते हैं, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो क्या करना है? 5 lakhs लिखा है यहाँ पे, 70,000, 70,000 डैश। क्लियर? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? बाद में इंटरेस्ट बाद में आते हैं, इंटरेस्ट बाद में आएंगे, ओके? या थर्ड पॉइंट, आंसर 100 किट्स आर गिवन फ्री, फ्री, फ्री। तो फ्री जब भी बोलोगे ना तो आपके आंसर में सेक्शन 71C एंड शेड्यूल 1 आना कंपलसरी है। सेक्शन 71C एंड शेड्यूल 1 आना कंपलसरी है। इग्नोर मोहित, इग्नोर, वी कांट हेल्प इट। आंसर करो, आंसर करो, मुझे बताओ। नॉर्मली विदाउट कंसिडरेशन इट इज नॉट अ सप्लाई। नॉर्मली विदाउट कंसिडरेशन इट इज नॉट अ सप्लाई। सैंपल्स मतलब सारे ने व्हाट इज सैंपल्स ओवर हियर? बॉस सेक्शन 71C शेड्यूल 1 चार चीजों को सप्लाई बोलती है। फर्स्ट, परमानेंट ट्रांसफर, permanent transfer on which ITC is availed. Second, to related party or distant person. Third, principal agent. Fourth, import of services. ये याद है कि नहीं याद है? ये याद है कि नहीं याद है? करेक्ट? अब यहां पे देखो, 100 किट्स आर गिवन एज फ्री गिफ्ट टू कस्टमर। कस्टमर दिया है मतलब मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट नहीं आएगा, पहला पॉइंट देखना पड़ेगा। शेड्यूल 1 का पहला पॉइंट, और शेड्यूल 1 का पहला पॉइंट बोलता है अगर मैंने विदाउट कंसेशन दिया है, अगर मैंने विदाउट कंसिडरेशन दिया है तो इट विल बी सप्लाई ओनली व्हेन मैंने परचेस पे अगर जो टैक्स पे किया था उसका मैंने आईटीसी अवेल किया है तो। यस और नो? 100 किट्स आर गिवन एज फ्री गिफ्ट टू जयपुर कस्टमर्स ऑन द ओकेजन ऑफ मिसेस काजल्स बर्थडे। कस्टमर है। ईच किट कंसिस्ट ऑफ 1 हेयर ऑयल एंड 1 ब्यूटी सोप। कॉस्ट ऑफ ईच किट इज 35, पर ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं देके रखा है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी देख नहीं रखा है, एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 71 क्यू 71A, 71A की जरूरत नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज नॉट बीन टेकन, ये आंसर का पॉइंट है। क्योंकि आपने आईटीसी नहीं लिया है इसीलिए ये सप्लाई ही नहीं है। जब सप्लाई ही नहीं है
तो वैल्यू और सप्लाई निकालने की बात भी नहीं आती है। तो किसकी बात करेंगे अपन, ये जयपुर वाले कस्टमर की बात कर देंगे, डैश 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 डैश। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? अच्छा, आंसर करो। चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप। आंसर करो। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि आईटीसी अवेल किया है, क्योंकि हमको तो आना चाहिए, दोनों आना चाहिए ना। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि आईटीसी अवेल किया है, तो आप क्या करते? आंसर करो, रिप्लाई करो। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि आईटीसी अवेल किया है, तो आप क्या करते? रिप्लाई करो फास्ट। हाँ, अभी तो सप्लाई नहीं है, पर क्वेश्चन गिवन सप्लाई नहीं है। पर अगर मैंने क्वेश्चन चेंज किया और मैंने यहाँ पे ये लिखा कि अगर आईटीसी अवेल किया है, तो व्हाट आर यू पीपल गोइंग टू डू? जल्दी बोलो। तो सप्लाई होता। ओके, अब सप्लाई होता, ओके, तो वैल्यूएशन निकालना पड़ता, वैल्यू निकालना पड़ता। पर ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ सर, सौरभ, मिक्स, अब वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, वैल्यू निकालना पड़ेगा सौरभ। तो वैल्यू कैसे निकालोगे, मुझे बताओ, वैल्यू कैसे निकालोगे? मिक्स मान लो, मिक्स से तो रेट मिलता है, मिक्स से तो रेट पता चलता है, वैल्यू निकालना है ना। मिक्स से तो क्या पता चलता है? अच्छा, हेयर ऑयल एंड ब्यूटी सेप में जो हाईएस्ट रेट वो ले लेंगे, पर वैल्यू, वैल्यू बताओ कौन सा रूल लगेगा, पहले बताओ आकाश, कौन सा रूल नंबर लगेगा? ट्वेंटी एट लगेगा। 28 किसके बीच में बात होती है? रिलेटेड पार्टी के बीच में बात होती है। 27 होता है विदाउट कंसिडरेशन। दिव्यम, हाउ कम 28? 27 is without consideration, 28 is between related party and distant person. Exactly मोहित। तो यहाँ पे 27 क्या बोलता है? ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू वो नहीं है। तो लाइक, काइंड एंड क्वालिटी वो नहीं है। नो नो, सॉरी सॉरी, मनी। पर यहाँ पे क्या मिसिंग है, मुझे बताओ क्या रूल है? 27 जल्दी बताओ, 27 में क्या आएगा? सेकेंड पॉइंट क्या आएगा? मनी प्लस मॉनेटरी वैल्यू, देन लाइक, काइंड एंड क्वालिटी। नेक्स्ट रूल 30 और देन रूल 31। अब मुझे आंसर करो, क्या लगेगा इस केस में? क्या लगेगा इस केस में? फटाफट रिप्लाई करो। क्या लगेगा? ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, एफओसी है तो ये भी नहीं है, लाइक, काइंड एंड क्वालिटी भी नहीं है। लाइक, काइंड एंड क्वालिटी, मोहित प्लीज कांट यू इग्नोर इट? यस, तो हम रूल 30 में जाएंगे। रूल 30 में जाएंगे, कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप। कॉस्ट कितना दिया है? 35 रुपीज दिया है, 35 रुपीज दिया है। तो 35 रुपीज प्लस 3.5 रुपीज, 38.5 रुपीज कितना है? 100 किट्स इंटू 100 इज 3850। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा।
और क्योंकि ये मिक्स सप्लाई है तो मिक्स सप्लाई में हमारा हेयर ऑयल एंड ब्यूटी सोप, सॉरी, हेयर ऑयल एंड ब्यूटी सोप 28%, 28%। और ये भी किधर होता, लोकेशन नहीं दी है, लोकेशन नहीं दी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 28% लगेगा। गेटिंग माई पॉइंट। बस इस तरीके से क्वेश्चन करना आना चाहिए। जो दिया है वो तो दिया है, जो नहीं दिया है और जो एग्जाम में चेंज करके पूछा जा सकता है वो भी थॉट देना आना चाहिए। क्वेश्चन में लोकेशन नहीं दी है कि प्लीज सप्लाई कहाँ किया है, इसलिए मैं इंट्रा की इंट्रा नहीं बता सकते। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, कैन आई गो एट। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट, event management services provided free of cost to a brother for his son's marriage function in Indore, Madhya Pradesh. Cost of providing said service is 80,000 rupees, but the open market value of such service and like kind and quality is not available. तो पहली बात है, जब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है आपका दिमाग चलना कैसे चाहिए। जब भी एफओसी बोला गया है, क्या बोला गया, एफओसी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, करेक्ट, मुझे बताओ, अगर एफओसी बोला गया है सबसे पहले आप क्या करोगे, आंसर करो, जल्दी 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 आंसर करो। अगर एफओसी बोलोगे सबसे पहले क्या करोगे, हाँ मोहित, अभी लिखना ही नहीं है, हाँ करेक्ट, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आंसर वैल्यू तो ये है, 3500 लिखोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि आपको जीएसटी पे तो इस पे लगाना है। अब यहाँ पे 7(1)(c) की बात आएगी, पर भैया ब्रदर रिलेटेड पार्टी कब होता है, जब सी माई स्पाउस एंड माई चाइल्ड is always my related party, but my brother, my sister, my parents, my grandparents will be my related party only when they are wholly or mainly dependent on me. समझ में आ रहा है, am I clear? तो यहाँ पे ब्रदर के बेटे की मैरिज है, मतलब ये अज्यूम किया जा रहा है, आप लिख के आना, अज्यूमिंग दैट ब्रदर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी। तो जब ब्रदर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी तो ही इज नॉट माई रिलेटेड पार्टी। एफओसी पे दिया है तो ये सप्लाई ही नहीं है। डिपेंडेंट होता तो सप्लाई होता, डिपेंडेंट होता तो सप्लाई होता। और उसके बाद रिलेटेड पार्टी में चले जाते हैं, रिलेटेड पार्टी में कौन सा रूल लगता है, 28 लगता है। 28 क्या बोलता है, ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, रूल 30 और 31 क्या हुआ, नहीं नहीं ब्लैंक ही छोड़ना है, टैक्सेबल है ही नहीं ना, ब्लैंक ही छोड़ना है। yes, because कहीं ना कहीं brothers sons marriage somewhere or the other you have to take this assumption that he is not dependent on you. yes, अगर डिपेंडेंट होता तो रूल 28 लगता, और रूल 28 में हमारे पास ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं है, लाइक काइंड क्वालिटी भी नहीं है, तो 30 पे जाते हैं। कॉस्ट कितना मिल के रखा है, 80,000, 80,000 प्लस 10% मार्कअप 88,000 हो जाता। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। पर्सनल पर्पस की बात कहां से आई, क्यों ऐसा लिखा है, नहीं 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 नहीं, जब रिलेटेड पार्टी को दिया जाता है ना, अगर मैं उस बिजनेस में हूं तो मैं उसको पर्सनल पर्पस नहीं मान रही हूं।
हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं. क्लियर? संजना, इज योर डाउट क्लियर? संजना, इज योर डाउट क्लियर? आईटीसी लेते तो सर्विस है ना. फर्स्ट पॉइंट किसकी बात करता है? बिजनेस असेट. अनूप, फर्स्ट पॉइंट किसकी बात करता है? बिजनेस असेट. यहां पे डी पॉइंट सर्विसेज है. गेटिंग मी? नेक्स्ट, तो डी पॉइंट भी क्या हो गया? कहां पे भेजा ये? ब्रदर. अब आ जाओ फिफ्थ पॉइंट पे. मजा तो इधर है. ये रब कर दूं, ये सब रब कर दूं जो बोर्ड पे लिखा है? प्लीज जल्दी बताओ. रब कर दूं? अब ई पॉइंट पर सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में या इस क्वेश्चन में ई और एफ है. 1400 चेयर्स एंड 100 कूलर्स रेंट पे दिए है. काजल ने, जो राजस्थान से है, उसने फंक्शन गार्डन को 1400 चेयर्स प्लस 100 कूलर्स रेंट पे दिए. कितने में दिए? 330 में दिए हैं. इस 330 में क्या इंक्लूडिंग है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग है. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. ओके, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द चेयर्स एंड कूलर्स फ्रॉम मिसेस काजल्स गोडाउन. ये किधर है? जयपुर में, राजस्थान में. ठीक है, और ये भी किधर है? राजस्थान में. ओके, दोनों राजस्थान में. मतलब क्या हो गया? इंट्रा हो गया. ओके, मिसेस काजल, एफ पॉइंट पढ़ रही हूँ. मिसेस काजल हैज पेड the cost of transportation of chairs and coolers to an unregistered GTA URD. हमारा GTA कौन है? URD है. उसको कितना दे रहा है? 20 रुपीज पर कूलर एंड, तो कितना पे किया? 30,000 पे किया. पे किया. और काजल ने आगे 30,000 ही चार्ज किया है. इसका ये मतलब हुआ इसमें दो चीज है. 3,30,000. 3,30,000. 3 lakhs is hiring, 30,000 is transportation. अब ये है लेग 1 और ये है लेग 2. पहले ये फ्लो चार्ट बनाओ. जब भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऐसा फ्लो बना लिया करो. दिस विल मेक योर लाइफ वेरी इजी. जब भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा फ्लो चार्ट बना लिया करो. दिस विल मेक योर लाइफ रियली रियली वेरी इजी. बनाया फ्लो चार्ट? अब लेग 1 का आंसर देना. GTA इज गिविंग सर्विसेज टू काजल, और क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन करके दे रहा है? चेयर्स एंड कूलर्स. चेयर्स एंड कूलर्स. अब जवाब दो, क्या इस चेयर्स एंड कूलर्स के ट्रांसपोर्टेशन पे क्या GST लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये संपन्न, करेक्ट. नाउ यू आर करेक्ट. मुझे बताओ,
क्या चेयर्स एंड कूलर्स पे जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? रिप्लाई करो। लगना चाहिए, क्योंकि चेयर्स एंड कूलर्स एग्जम्प्टेड नहीं है। बट क्योंकि मेरा जीटीए अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि मेरा जीटीए यहाँ पे कौन है, अनरजिस्टर्ड है, तो मुझे यहाँ पे क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। और आरसीएम में क्या परसेंट लगेगा, 5% लगेगा। यस और नो? एम आई क्लियर? अब मुझे बताओ, ये 30,000 पे 5% कौन टैक्स पे करेगा? ये 30,000 पे 5% कौन टैक्स पे करेगा? ये 30,000 पे 5% कौन पे करेगा? जल्दी काजल। और क्योंकि ये भी राजस्थान से है, तो यहाँ पे 2.5 तो 30,000 का 2.5% कितना होता है, 750। तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा एफसीएम का टैक्स लायबिलिटी अलग से दिखाओ, आरसीएम का टैक्स लायबिलिटी अलग से दिखाओ। तो यहाँ पे आरसीएम के अंदर काजल को 30,000 के ऊपर 750, गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? हमेशा एफसीएम की लायबिलिटी अलग दिखाना, आरसीएम की लायबिलिटी अलग दिखाना, ये एक प्रेजेंटेशन दिमाग में रखना। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ू? ये क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? क्या हो गया? ओके, नाउ आगे। काजल कौन है? वो काजल, इस काजल है जीटीए, इस काजल है जीटीए, इस काजल है जीटीए। रिप्लाई, इस काजल और जीटीए, यस और नो? रिप्लाई करो, इस काजल और जीटीए, नो। तो जब काजल जीटीए नहीं है, हाँ वो तो अवेल करेगी। तो मुझे बताओ, ये 3 लाख रेंटिंग है, ये 30,000 जीटी मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कर रही है, तो ये तो एग्जम्प्ट होना चाहिए, ये एग्जम्प्ट होना चाहिए और ये टैक्सेबल होना चाहिए। यस और नो? यस और नो? क्योंकि काजल जीटी नहीं, और हमने पढ़ा है एग्जामिनेशन चैप्टर में कि जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ जीटीए। तो ये 30,000 पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? मेरे हिसाब से 3 लाख पे टैक्स लगना चाहिए, 30,000 पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। यस और नो? इतना टाइम लग रहा है क्या? ओके, गौरव सिंह राइट, ठीक है। अदर्स? सौरभ इज सिंह राइट, कमलेंद्र इज सिंह राइट। और कोई? मोहित, गौरव, बस। मोहम्मद, मैं तो पूछ रही हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग, वाई नहीं पूछ रही हूँ। आई डोंट नो, मैं तो गलत भी बोल सकती हूँ। बॉस नहीं, यहाँ पे काजल इज गिविंग कंपोजिट सप्लाई ऑफ रेंटिंग एंड जीटी, एग्जैक्टली। और प्रिंसिपल क्या है, रेंटिंग है, तो पूरे 330 पे टैक्स लगेगा।
और किसके रेट से लगेगा, रेंटिंग के रेट से लगेगा, और रेंटिंग पे रेट क्या है 12% है, 6 and 6%, तो 330, एक मिनट, 19,800, 19,800, समझना मैंने आप लोगों को कंफ्यूज किया है यहाँ पे। मैंने ये बोला क्या जीटीए, अगर काजल तो जीटीए नहीं है तो उसकी सर्विस, ये वाली सर्विस एग्जाम्प्ट होनी चाहिए, पर ये एग्जाम्प्ट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि काजल इज गिविंग टू थिंग्स, रेंटिंग एंड जीटीए, इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है, जो प्रिंसिपल का ट्रीटमेंट होता है वो पूरे पे लग जाता है। प्रिंसिपल क्या है, रेंटिंग, तो पूरे 330 पे लगेगा। यस, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्लियर, क्लियर, क्लियर और नॉट क्लियर? अस्मिता क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर अस्मिता? मोहित स्टेमिना बढ़ाओ अपना, कैपेसिटी नहीं बैठने की पढ़ने की। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। इज दिस क्लियर? लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट मिला 6,400 का, कौन से ट्रांजैक्शन पे? फैंसी स्टोर, राम फैंसी स्टोर, राम फैंसी स्टोर पे अपन ने क्या रेट लगाया है, 28%, और कौन से मंथ में मिला है, जनवरी मंथ में मिला है। आपको पता है इंटरेस्ट कब, इंटरेस्ट का टाइम सप्लाई क्या होता है, इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? अरे अनूप, मैंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा, पूछ, सो रहे हो? अब ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा था तब, मैंने तब आपको क्वेश्चन पूछा था क्या होगा कि नहीं होगा। जब मिलेगा, कब मिला, जनवरी मंथ में मिला, और हम जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये इंक्लूसिव होता है ऑफ जीएसटी। मुझे बताओ इसमें जीएसटी का रेट कितना होगा, इस ट्रांजैक्शन में जीएसटी का रेट कितना होगा? या व्हेन रिसीव्ड, तो कब रिसीव हुआ? करेक्ट, इंटरेस्ट इज नेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स नहीं, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है। करेक्ट, 28%, कोई ओरिजिनल सप्लाई कितने पे था, 28%, तो ये कितना परसेंट हुआ, 6 पॉइंट, क्या देखे रखा है, 6,400, 128% 6,400, तो 100% कितना, 5,000, 5,000 का 14%, 700, 700, यस और नो? अभिषेक 12% कहां से आ गया? अब इसमें देखो कितना टैक्स भरा अपन ने, 70,000 प्लस 19,800 प्लस 700, यहाँ पड़ा अपन ने 90,500, यहाँ अपन ने 90,500, यहाँ 9,900, और यहाँ अपन ने बढ़ा 750, 750। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? प्लीज टेल मी। तो जगह और होनी चाहिए, जगह कम पड़ गई मेरे को। हाँ करेक्ट, 3-4 दिन, बस 3-4 दिन यूट्यूब पे, फिर एमएस टीम पे। क्लियर, क्लियर, सॉल्यूशन देखे, इनका आंसर कितना है,
इन्होंने टोटल आरसी में एफसी में, अपन कभी भी साथ में मत लिखना। तो कितना आंसर आया अपना 90,500 प्लस 750 91,250 91,250 9900, राइट। मैच कर रहे हैं, बट कभी भी आरसीएम और एफसीएम एक साथ मत लिख के आना, टोटल बाद में अलग से कर देना, ठीक है। Am I clear till here? Tomorrow I'll complete supply chapter question answers and I'll start with chapter 3 also. Tomorrow I'll complete supply questions. So before I end today's session, just want to let you know this is a paid batch, Unstoppable batch का नाम है, और it's only 3 to 4 days ये batch YouTube पे available रहेगा। Am I clear? अगर इस बैच में आपको एनरोलमेंट करवाना है, यू कैन you can contact on this number, 90, ये व्हाट्सअप। थैंक्स अनूप। आरसीएम सॉल्यूशन प्लीज 1 मिनट दिखाती हूँ। ये नंबर्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटोग्राफ खींच लीजिए। एंड फीस इज, इफ यू वांट अ ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी इट्स 1999, colored copy 2400, without material 1750। क्लियर? कॉपी करो। क्या लिखा सुष्मिता मैम, इफ ITC was not taken and supplied to related person then also not taxable ना मैम? नो, उस केस में फिर ITC वाला प्रोविजन ही नहीं है। When I am giving to related person, it is supply as per para 2. Yes, Mohit, I'll provide, don't worry. Sushmita, is the doubt clear? Second para आपको ITC कंडीशन, सेकेंड पैरा बोलता है आर यू गिविंग टू रिलेटेड पार्टी, इफ यस इट्स सप्लाई। क्लियर? यस। सो मैंने बैच की इंफॉर्मेशन फिर से शेयर कर दी आप लोगों से। दिस इज अ कॉन्टैक्ट नंबर एंड दिस इज अ फीस एंड जिसे आज हमने सॉल्व किया है वैसे ही हम डेली सॉल्व करने वाले हैं। ओके, बाय, टेक केयर, सायोनारा, गुड नाइट।